Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I am sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy. We are continuing with chapter number 16, that is the earth and the sky. And in this chapter, I have completed the explanation part and we started with the exercises in the previous class. So we have not completed the exercises, question answers are still incomplete. So we will complete the question answers today. Okay children? But before starting today's work, let us just revise the lesson in short. जो अभी lesson में हमने पढ़ा और जो हमने exercises में किया. Let us revise it in very short. In this lesson, as I have told you, the learning objectives are, मतलब learning objectives का मतलब है कि आप lesson पढ़ने के बाद क्या क्या सीखोगे. So in this lesson, we have talked about different types of land, that is different landforms. Mainly we have learned that there are three main landforms: plains, hills and mountains. And of course, apart from these three, there are other landforms also. But right now, we have discussed about only these three landforms. Earth is the planet on which we live. Earth is covered with land and water. Maximum part is covered with water and some part is covered with land. Then it is surrounded by layers of air. Everything is on land. We live on land. Animals live on land. Plants, भी जितने तरह के plants हैं, everything is on land. And of course, there are different types of water animals also and different types of aquatic plants also. Then landforms, and उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि landform के अलावा sky. We see moon and sky. We see moon and sun and stars in the sky. During the day, we see sun, while at night, we see stars and the moon. Why can't we not see moon and stars during the day? Because of the bright sun. We cannot see them during the day. उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? Water bodies. There are different types of water bodies. Water bodies में बहुत तरह के water animals हैं. Aquatic plants are there. Then different types of water sports are there. जो हम पानी use करते हैं. The water which we drink and which we use for all other purposes, we get from these water bodies only. And then sky में हमने पढ़ा था, and after rains, many a times we see rainbow in the sky. How does a rainbow is formed? कैसे बनता है? Rainbow is formed when the rays of sun falls on the water droplet. जो बारिश होने के बाद भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, which we cannot see. और जब सन निकलता है, जब उनके ऊपर सन की रेस पड़ती हैं, then we can see the rainbow. There are 7 colors in a rainbow. They are known as Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. And they are in this order only. ऐसा नहीं कि ये 7 कलर्स है वो किसी भी ऑर्डर में हो जाए. दे आर इन दिस ऑर्डर ओनली. ओके. देन कीवर्ड्स हमने पढ़ा था. माउंटेन्स. माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड फॉर्म. देन स्कूबा डाइविंग. डाइविंग का मतलब होता है डाइव लगाना, पानी के अंदर कूदना. स्कूबा डाइविंग इज अ काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट. देन सनी डेज. सनी डेज व्हेन देयर इज ब्राइट सन. जैसे अच्छी धूप है तो व्हाट डू वी से? इट इज अ ब्राइट एंड सनी डे टुडे. If it is raining, we say it is a rainy day today. अगर धूप नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत फॉग है, तो we say it is a very cold day today. Okay? Then rainy day, of course, when rain occurs, जब बारिश होती है. And then crops. जैसे farmers grow crops on land only. तो crop का मतलब होता है फसल. जब किसी चीज को बहुत large area में उगाते हैं, that is crop. जैसे lot of people have किचन गार्डन इन देयर होम्स. घर में जमीन है कि छोटा सा किचन गार्डन लगा रखा है. सो वी गेट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. बहुत सारी चीजें मिलती हैं. बट
we cannot call it a crop because that is not grown on a large area. छोटे से एरिया में ग्रो करते हैं. तो when something is grown on a large area, then it is known as crop, whether it is fruits or vegetables. कोई भी खाने की चीज है तो जब बहुत लार्ज एरिया पे उसको एक साथ ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप, फसल जिसको हिंदी में कहते हैं. Then what are the things to remember? The things to remember are, we live on planet Earth. It is covered with land and water. Land has different forms like hills, mountains, plains, deserts, etc. Then water bodies are also of different type like river, lakes, pond, sea, ocean, etc. We see sky far above the earth. अर्थ के ऊपर हमको बहुत दूर, अर्थ और स्काई के बीच में कितना डिस्टेंस है दैट वी डू नॉट नो. अर्थ से स्काई के बीच का डिस्टेंस तो हमें नहीं मालूम है. ऊपर देखते हो तो ऊपर तो देख के हमको लगता है कि मे भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, बट इट इज एक्सट्रीमली फार. ठीक है. एंड देन वी सी द सन ड्यूरिंग द डे एंड मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट. दिन में हम सन को देखते हैं और रात में मून और स्टार्स देखते हैं. बिकॉज of the sun's bright light, we are not able to see moon and stars during the day. Otherwise, वो रहते कहाँ हैं? वो रहते स्काई में ही है. ऐसा नहीं है कि मून और स्टार्स दिन में कहीं छिपे रहते and they come out in the evening. ऐसा नहीं है. Okay? Then yesterday in the previous class, we started with the exercise. First was tick the right answer. So the biggest water body is, and the three options are river, lake and ocean. So biggest water body we all know is ocean out of the three, and as such ocean का मतलब है महासागर. तो जितने भी water bodies है उसमें ocean is the biggest water body. We see the blue sky far above the earth, sun and stars. We see the blue sky far above the earth because sun और stars तो sky में रहते ही हैं. And then dash cause rays, clouds. Clouds मैंने बताया था कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है, जो वाटर बॉडीज का जो पानी है वो सन की हीट पड़ने से, सन की गर्मी से वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, भाप बन के. इवेपोरेट मतलब भाप बन के ऊपर जाता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता. एंड वो सारे जैसे क्लाउड जो होते हैं, दे आर कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो वो सारे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं. जब बहुत सारे हो जाते हैं देन दे फॉल लाइक इन द फॉर्म ऑफ रेन. बारिश की तरह नीचे पानी बरसता है. दैट वाटर इज अगेन कलेक्टेड इन वाटर बॉडीज. वो जो बारिश जब होती है तो पानी कहाँ जाता है? पानी या तो जमीन पे गिरता है, इट इज अब्सॉर्ब बाय सॉइल, जहाँ कच्ची जमीन है, सॉइल है. अदरवाइज लेक्स है, रिवर्स है, वेल्स है, वाटर, जितनी भी अलग अलग वाटर बॉडीज है, पॉन्ड्स है, उनमें ही पानी गिरता है. तो इट इज लाइक अ साइकिल. नीचे से ऊपर जाता है, फिर बारिश होकर ऊपर से फिर से नीचे आ जाता है. The next question was, put a tick against the right statement and a cross against the wrong statement. First is the sun rises in the west. It is not correct. The sun rises in the east. We see the sun in the east in the morning. सुबह हमें sun कहाँ दिखाई पड़ता है? East में. That is, sun rises in the east. So first sentence is wrong. Second is, land covers most part of the earth. This sentence is also wrong because I told you, मैंने बताया था कि earth का 70% part is covered with water. अर्थ का 70% पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है. ओनली 30% इज लैंड. ओके. सो लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रॉन्ग. इनफैक्ट द करेक्ट सेंटेंस वुड बी वाटर कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड. ठीक है. एंड फर्स्ट इज द सन राइजेज इन द वेस्ट. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है. देन क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज, अर्थ की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज सराउंडेड बाय एयर. हमारे कवरिंग मतलब हमारे आसपास. अर्थ का जो सरफेस है दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. एंड कवरिंग ऑफ द अर्थ का मतलब है हमारे जो आसपास जो एनवायरमेंट है. ठीक है. उसको क्या वो है, दैट इज द कवरिंग. इस लेसन में फर्स्ट पैराग्राफ में इट इज रिटन वेरी क्लियरली दैट द अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर. अर्थ किससे कवर्ड है? लेयर्स ऑफ एयर से. नेम 3 अर्थ फॉर्म. एनी 3 अर्थ फॉर्म वी कैन राइट. प्लेन्स,
hills and mountains. Then why can we not see stars during the day? We cannot see stars during the day because of the bright sun. Sun is so bright. कभी आप दिन में आप सर ऊपर करके देखने की कोशिश करोगे, आप कभी देख ही नहीं पाओगे, आँख खुलती ही नहीं है. एंड सन की लाइट की तरफ डायरेक्टली देखना भी नहीं चाहिए बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल टू द आईज. दैट इज वाई पीपल वेयर सन ग्लासेस. जो धूप में जैसे निकलते हैं, बाइक है या 4 व्हीलर है, कार है, कुछ ड्राइविंग करते हैं तो सारे सन ग्लासेस पहन के करते हैं, सो दैट सन की इतनी ब्राइट लाइट से व्हीकल चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर बिना ग्लास पहने, बिना आईज को कवर किए चलाते हैं तो कभी कभी सन की लाइट इतनी तेज होती है कि वी आर नॉट एबल टू सी. ओके, so we cannot see stars during the day because of the bright sun. Okay, now today we will start with HOTS. HOTS, that is higher order thinking skill. HOTS, HOTS. Higher order thinking skill. First is write 2 steps to protect our earth. मतलब हमारी अर्थ को बचाने के लिए 2 स्टेप्स. अर्थ को हम कैसे बचा सकते हैं? 70% पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ओके, बट मैक्सिमम पार्ट इज सीज एंड ओशन. जो पूरा 70% पार्ट जो अर्थ का वाटर से कवर्ड है, उसमें ज्यादातर क्या है? सी या ओशन है. एंड सी एंड ओशन वाटर कैन नॉट बी used for drinking purpose or for other household purpose because of very high salt content. जो सी, समुद्र का या महासागर का जो पानी होता है, उसको जैसे हिंदी में कहते हैं ना, बहुत खारा पानी है. खारा मतलब उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है. तो उस पानी को हम एज पीने के लिए या किसी काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते. तो इतना वास्ट, इतना, कल जैसे मैंने ग्लोब में दिखाया था आप लोग को कि ग्लोब में पूरा अर्थ इज ऑलमोस्ट ब्लू. अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू वाटर, क्योंकि जब स्पेस से अगर अर्थ की फोटो क्लिक करते हैं तो अर्थ लुक्स ब्लू, पूरा वाटर दिखाई पड़ता है. सो बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. बट इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ वाटर, इतना पानी होने के बाद भी पानी पीने वाला या हमारे डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करने वाला पानी बहुत कम है. ठीक है, दैट इज अंडर वाटर जो सोर्सेज होते हैं जहां से हमको जो पानी मिलता है. सो ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म भी हो सकता है. ओके, दैट वाटर वो कभी खत्म भी हो सकता है. तो हमको अगर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? एक तो वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. प्लांट को हम कट ना करें. ठीक है, प्लांट को कम से कम प्लांट को कट करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है. और प्लांट मोर ट्रीज. जैसे प्लांट्स के बेनिफिट हम सबने पढ़े कि प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट है. प्लांट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी गेट ऑक्सीजन. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, हमको प्लांट से और कितनी सारी चीजें मिलती है फूड आइटम्स के अलावा भी. वी यूज सो मेनी थिंग्स जिसमें कि प्लांट्स का प्रोडक्ट कोई रहता है. ठीक है, तो प्लांट्स गिव अस शेड, प्लांट्स गिव अस सो मेनी थिंग्स. सो फर्स्ट step is what the question is, write 2 steps to protect our earth. So the first step could be 2 steps to protect our earth. First step can be don't cut trees. Do not cut trees. Plant
more and more trees. ठीक है, ट्रीज को कट मत करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को हम प्लांट करें. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, हमारी एयर प्यूरिफाई होगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट. सो डोंट कट ट्रीज, डू नॉट कट ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. एक स्टेप तो ये हो सकता है अर्थ को बचाने का. एंड सेकेंड स्टेप कुड बी कीप द वाटर बॉडीज क्लीन. वाटर बॉडीज को क्लीन रखो. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज. जो वाटर बॉडीज है वहां पे कूड़ा करकट जो लोग ले जाके फेंक देते हैं वो मत फेंको. कीप द वाटर बॉडीज क्लीन. डू नॉट वेस्ट वाटर. स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. जैसे जब कोई आप काम करते हो तो डू नॉट लीव द टैप ओपन. उसको बंद करके रखो. जैसे ब्रश कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, घर में जैसे मेल मेंबर्स शेव करते हैं, तो उस समय आप वाटर के टैप को जो है कीप इट क्लोज. जब रिक्वायरमेंट हो तभी खोलो. तो वन वी कैन सी डू नॉट कट ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. एंड वी कैन से डू नॉट वेस्ट वाटर. ठीक है, पानी को वेस्ट मत करो. एंड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. मतलब पानी बर्बाद मत करो एंड एट द सेम टाइम पानी की बर्बादी को रोको. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, वाटर रिसोर्सेज भी जो हमारे हैं वो लिमिटेड होते हैं. वाटर भी जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब हमको पानी मिल जाए. दैट इज ऑल्सो लिमिटेड. वाटर का मतलब मिसयूज हम बंद करें. वाटर को मिसयूज नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एवरी ड्रॉप काउंट्स. मतलब हर एक बूंद पानी की काउंट करती है. अगर ये सोचो, कई बार बहुत होता है जैसे फॉल्टी टैप है, जो पानी का टैप होता है कई बार होता है ठीक से बंद नहीं होता है एंड उसमें से ड्रॉप 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 पानी गिरता रहता है. वी फील कि अरे एक एक ड्रॉप ही तो गिर रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. बट अगर उसको हम छोड़ देंगे तो वो ड्रॉप ड्रॉप गिरते गिरते भी द एंटायर टैंक विल गो एम्प्टी. सारा जो वाटर ओवरहेड टैंक होता है जहां से पानी आ रहा है वो पता चलेगा पूरा खाली हो गया. वो ड्रॉप ड्रॉप गिरते गिरते भी पूरा टैंक खाली हो सकता है. सो देयर इज अ वेरी फेमस, एक बहुत फेमस ये कहावत है कि एवरी ड्रॉप काउंट्स. पानी की हर एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी ड्रॉप काउंट्स का मतलब है कि पानी की एक एक बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे 1 पैसा है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. अभी वो 100 पैसा कैसे होता है, 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा 1 पैसा जोड़ करके ही तो 100 पैसे बनते हैं ना. एंड दैट 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. सो एवरी ड्रॉप काउंट्स. हर एक ड्रॉप पानी की बहुत फेमस है. एंड वन मोर प्रोवर्ब इज देयर. एक हिंदी में एक और बहुत फेमस कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है. मतलब इतना बड़ा समुद्र है, उसका भी अगर बूंद बूंद निकालेंगे तो शायद मे बी फ्यू थाउजेंड ईयर्स वो भी शायद पूरा खाली हो जाएगा. ठीक है. सो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर अर्थ? डू नॉट कट ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड डू नॉट वेस्ट वाटर. स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. ओके. देन सेकेंड इज, जिसको मैं रब करके फिर सेकेंड वाला लिखूंगी. Second hot question is, write 2 ways to protect our water bodies. Write 2 ways to protect our water bodies. जितने भी पानी के सोर्सेज है, लेक है, रिवर है, पॉन्ड्स है, सीज, ओशन, जो छोटे छोटे नाले होते हैं, ऑल दीज आर वाटर बॉडीज. जितनी भी पानी की जगह है इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज वाटर बॉडीज. ठीक है. सो राइट 2 ways टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज. हमारी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके बताने हैं. अभी किसी चीज को प्रोटेक्ट करना मतलब उसको बचाना.
तो हम कैसे बचा सकते हैं? एक तो वाटर बॉडीज को हम क्लीन रखें, ठीक है। वाटर बॉडीज जो वाटर के सोर्सेज है, जहाँ पे जैसे रिवर्स है, जो लेक्स होती हैं, उनके पास वहां पे जा करके हम कपड़े ना धोएं, ठीक है, क्योंकि कपड़े धोने से उसका जो सोप वाला पानी है दैट गोज इनटू द वाटर बॉडी। वहां पे जाके वाटर बॉडीज में अपने एनिमल्स को बहुत बार जो एनिमल्स जिनके होते हैं उनको पानी में नहला देते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडीज, और हम अपने घर का कूड़ा ले जा करके उस पर नहीं फेंकें। घरों में हमारे क्या होता है, पूजा वगैरह कुछ होती है तो जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा हम ले जा करके, यहाँ जैसे वाराणसी में हम सब ले जाके गंगा जी में फेंक देते हैं। तो वो पानी में डिजोल्व तो होता नहीं है, इट कीप फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में तैरता रहता है, सड़ता रहता है, तो पानी गंदा होता है। ओके, सो डू नॉट थ्रो। फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट इज टू ways to protect our water bodies, ठीक है। फर्स्ट वी कैन राइट एज डू नॉट थ्रो माने फेंकना, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज, मतलब जो वाटर बॉडीज है उसमें कूड़ा मत फेंको। जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें कूड़ा मत फेंको। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कुड बी कीप द टैप्स क्लोज्ड, कीप द टैप्स closed while brushing teeth, washing hands, or face, शेविंग, ठीक है। तो कीप द टैप्स क्लोज वाइल ब्रशिंग टीथ, जैसे दांत ब्रश करने के टाइम पे, फेस वॉश करने के टाइम पे, या हैंड वॉश करने के टाइम पे, शेविंग करने के टाइम पे टैप्स को क्लोज रखो, ठीक है। वी हैव टू राइट ओनली टू, बट अपार्ट फ्रॉम, ऐसा नहीं कि सिर्फ बस यही दो है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज, वी कैन ऑल्सो से डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज। जो वॉशरमैन होते हैं, जिनको धोबी हम कहते हैं, सिंस ये तो कपड़े धोने का काम करते हैं तो ये नदी पे जाके धोते हैं कपड़े, तो इनके लिए पूरी सेपरेट जगह बनी रहती है जहां पे ये जाकर के अपने कपड़े धोते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नदी के किनारे जाकर के कपड़े धोने लग गए, ऐसा अलाउड नहीं है इन्हें। इनके लिए अलग से स्पेस बनी रहती है, अलग से प्लेस रहती है वेयर दे गो एंड वॉश देयर क्लोथ्स, ठीक है। सो डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज, और वी कैन ऑल्सो से वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चलो ठीक है, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज, देन कीप द टैप्स क्लोज व्हाइल ब्रशिंग टीथ। प्रोटेक्ट, हमारी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है ना, तो वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें वाटर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए वेस्टेज ऑफ वाटर भी हमें रोकनी पड़ेगी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा कि स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो अ वे टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज। वो भी तो एक तरीका है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन ऑल्सो से स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, किसी भी तरीके से पानी की बर्बादी को हमें रोकना चाहिए। वेस्टेज मतलब बर्बादी, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द वेज, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बस यही वेज है, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। दीज आर सम ऑफ द वेज। बहुत जगह लोग क्या करते हैं, जहां पे थोड़ा सा पानी की स्केसिटी रहती है, जहां पानी की थोड़ी शॉर्टेज होती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, सो व्हाट डू पीपल डू, जैसे घर में
कुछ भी हम बनाने से पहले उसको धोते हैं। वेजिटेबल सब्जी बनाना है तो उसको हम धोते हैं, फ्रूट काट के खाना है तो फ्रूट को हम धोते हैं, चावल बनाती है मम्मी, दाल बनाती है तो हम सबको पहले हम धोते हैं। तो व्हाट डू पीपल डू, दे वॉश, जो धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को दे डू नॉट थ्रो इट, उस पानी को फेंकते नहीं है, दे यूज दैट वाटर टू वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स अगर घर में है सो दे ऑल्सो नीड वाटर। तो लोग क्या करते हैं कि जो धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को वाटर में डाल देते हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े जैसे धोते उसके पानी को हम नहीं यूज कर सकते प्लांट्स में, बिकॉज दैट इज मिक्सड विथ सोप, उसमें सोप रहता है। तो उस वाटर को अगर हम प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स खराब भी हो सकते हैं। बट आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस है, दाल है, ये सब धोने के बाद जो पानी बचता है वो ले जा करके वो वाटर में, प्लांट्स में डाल देते हैं, तो वो पानी यूज हो गया। और भी बहुत जगह क्या करते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने के बाद जो पानी निकलता है वो इस तरह से उसका अरेंजमेंट करते हैं कि दैट वाटर गोज टू द वाटर बेड्स, जो क्यारी बनी हुई है, कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, उसमें पानी जाता है। सो दीज आर सर्टेन वेज थ्रू विच वी कैन स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर एंड वी कैन प्रोटेक्ट अवर वाटर बॉडीज। ओके, ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ लाइफ स्किल, लाइफ स्किल इन एवरी लेसन लाइफ स्किल इज देयर। इवन इनफैक्ट मैथ्स में भी हमने लाइफ स्किल पढ़ा। लाइफ स्किल मैंने बताया, लाइफ स्किल का मतलब होता है, स्किल कहते हैं हिंदी में कौशल को। स्किल का मतलब है कि कोई चीज, नई चीज सीखना, ठीक है। स्किल का मतलब है कौशल। स्किल मीन्स टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, कुछ नई चीज सीखना। लाइफ स्किल्स का मतलब है कि हम ऐसी कुछ नई चीजें सीखें जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है। लाइफ स्किल का मतलब है कि हम कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसी बातें सीखें जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए यूजफुल हो। ओके, जैसा मैंने पहले बहुत बार बताया कि लाइफ स्किल डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी लर्न थ्रू अदर्स, जो हम अपने एक्सपीरियंस से, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी सी सो मेनी थिंग्स, वी एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, दूसरों को देख करके हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, ठीक है। कि बहुत लोगों की बहुत कुछ कुछ अच्छी हैबिट्स होती है, हमें अच्छी लगती हैं, तो वी ट्राई टू इम्बाइब दोज वैल्यूज कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। दिस इज सच अ गुड हैबिट। लाइफ स्किल में है कि अर्थ इज कॉल्ड एज मदर अर्थ। वाई? धरती को धरती माँ क्यों कहते हैं? मदर अर्थ अर्थ को मदर अर्थ क्यों कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना धरती माता, ठीक है, बहुत लोग धरती को प्रणाम करते हैं, धरती माता बोलते हैं, तो अर्थ को मदर अर्थ क्यों कहते हैं? अर्थ इज लाइक आवर मदर बिकॉज इट गिव्स अस सो मेनी थिंग्स। जैसे घर में मम्मी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बात होती है, सबसे पहले भाग के किसके पास जाते हो? अपनी मम्मी के पास। किसी ने मार दिया, किसी ने डांट दिया, भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए, कोई भी काम होता है, होमवर्क करवाना है, मैम ने स्कूल में डांट पड़ गई, तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाते हो ना। तो जैसे मम्मी आपकी हर तकलीफ का ध्यान रखती है, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो आपको खाने की चीज पसंद है वो बना के खिलाती है, आपको स्कूल जाने से पहले रेडी करती है, होमवर्क कराने में हेल्प करती है, आपके कपड़े धोती है, शी वॉशेज योर क्लोथ्स, आयरन्स देम, बैग रेडी करना, सारा काम मम्मी करती है। तो जैसे मम्मी सारा काम करती है, जैसे मम्मी अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती है, जैसे मम्मी अपने बच्चों की देखभाल करती है, इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ अस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा जो घर है वो अर्थ पे है। वॉट एवर वी ईट इट इज ग्रोन ऑन अर्थ ओनली। जो भी हम खाते हैं हमें कहाँ से मिलता है? सब चीजें तो अर्थ पे ही, जमीन पे ही पैदा होती हैं। सो वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम अर्थ ओनली। जो भी खाने की चीजें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, पल्सेज है, सीरियल्स है, स्पाइसेस है, एवरीथिंग। इनफैक्ट जो आप बर्गर पसंद है, हम लोग बर्गर खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर, इसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामान होता है, सब अर्थ पे ग्रो करता है, जमीन पे ग्रो करता है। सो इतने सारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट से सब चीजें हमें मिलती हैं। देन एनिमल्स ऑल्सो
get so many things from plants. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स खाते हैं. दे मेक देयर प्लांट्स एज देयर होम. बड़े बड़े ट्रीज पे कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स का नेस्ट है, उसके शेड में एनिमल्स बैठते हैं. सो वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अर्थ. तो जैसे लाइक अ मदर टेक्स केयर ऑफ अर चिल्ड्रन, अर्थ ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ अस. दैट इज वाई इट इज वी कॉल मदर अर्थ एज मदर अर्थ. इसीलिए अर्थ को मदर अर्थ कहा गया है. ओके. Now children, this lesson is over. Exercises are also over. In the next class, we will start with chapter number 17, that is air and water. So that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.